अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमर हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। पेट्रोल महंगा हो तो उसके असरात कुछ ही दिन में नज़र आना शुरू हो जाते हैं। 10 रुपये कुछ पैसे डीज़ल बढ़ा, एक दिन पहले पेट्रोल 8 रुपये 36 पैसे बढ़ा। और उसके असरात ये हैं कि मार्केट में आज हम जब सर्वे करने आए हैं सिर्फ एक दिन बाद, तो आप देखिए कि आज दूसरा दिन है पेट्रोल बढ़े हुए कि आप देखिए सब्जियां महंगी होना शुरू हो गई हैं, फल महंगे होना शुरू हो गए हैं, जो कि पहले ही आम आदमी के लिए लग्जरी बन गए थे। लोगों की कमाई उतनी ही है, महंगाई में इजाफे की वजह से वो भी डीवैल्यू हो रही है। इस पर आवाम क्या कहती है और आवाम किस तरह से गुजारा कर रही है, आज आपको ये दिखाते हैं। आवाम दोस्त बजट, सस्ती चीज़ें, महंगाई कम हो गई है का नारा लगाते लगाते एकदम से दूसरी मरतबा 15 दिन के बाद ही पेट्रोल महंगा कर दिया गया और करीबन 9 रुपये का इजाफा हुआ है पेट्रोल में। तो ये आवाम को कौन सा लॉलीपॉप दे रहे हैं, कौन सी टॉफियां बांट रहे हैं कि महंगाई कम हो गई है, जबकि जब पेट्रोल बढ़े, डीजल बढ़े तो सारी चीज़ों में उसका प्रेशर जो है वो फील होना शुरू हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, एक पासे नारे लाते ने हुकूमत असी महंगाई घट करती, पाकिस्तान स्टेबल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये साडे मुकद्दरां विच ही कुछ हैगा। दुनिया दे विच पेट्रोल सस्ता हो रहा है, पेट्रोल सस्ता होया, साडा नहीं सस्ता होया। साडा जदां भी जिहड़ी हुकूमत आई है ना, वो सानू लॉलीपॉप दे दे के बाद च महंगा कर देंदी है। सानू ये चक्कर ही देंदे रहने, असीं तो चक्करां विच ही इन्ने उम्र गुजार ली है। सर 9 रुपये पेट्रोल बढ़ा, हाँ जी 9 रुपये महंगा हो गया। ये घटा असीं तो ये पेट्रोल कम होने की उम्मीद लाई हुई सी ते इन्हां ने 9 रुपये पेट्रोल महंगा करता है। साडे किहड़ी कसर जिहड़ी साडे कढनी ने, मैं दसनी है किहड़ी कसर है। 84 करोड़ रुपया वज़ीर आज़म हाउस का बजट रखना है, डिस्पेंसरी का 1.5 करोड़ रुपया बजट रखना है, वज़ीर आज़म के बागीचे वास्ते करोड़ रुपए का फंड रखे है। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚਣ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਪੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੀਣਾ ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਜੰਗ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਈਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਿੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਸਤੇ ਹੋਣੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੈਸ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗਲੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਹੀ ਨਿਚੋੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਆਏ ਖਲੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਚੁੱਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪਾਣਗੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣਗੇ, ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ। ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਕਸਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਅਰਬੋਂ ਖਰਬੋਂ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਸ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਆਹ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ 40,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ। ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਪਤਾ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਤੇ 40,000 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਬਸ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ? ਪਿੱਛੇ 20 ਮੈਂ 25,000 ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ 20,000 ਵਾਲੇ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ? ਬਾਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਈਏ ਸਾਰੇ। ਸਮਝੇ ਨਾ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 40,000 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਰਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੈਂ, ਨਿਰੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਦਾ ਅੱਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੱਖੋਂ ਅਰਬੋਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਗ੍ਹਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਬੜੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਵੋ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾਓ, ਜਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਓ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ LD ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਫੱਟੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਲਵੋ, ਉਹ ਚੁਕਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर 8 रुपये कुछ पैसे, तकरीबन 9 रुपये ही सही, पेट्रोल का बम गिरा दिया है। दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, आपने जो बजट में लेवी लगाई थी जिसपे किसी ने बात नहीं की, अब उसके असर नजर आना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल असरात हैं, हर आदमी पे आ रहे हैं, आम आदमी क्या, सब पे आ रहे हैं। स्पेशली हम लोग जो
लेबर ही कहेंगे अपने आप को। आप ये देखिए कि सैलरी कहाँ है, महंगाई कहाँ है, ठीक है, उसके ऊपर ये बर्डन और हम पे डाले जा रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता, तो खुदकुशी ही होगी और क्या होगा। अभी एक साहब कह रहे थे 40,000 रुपया कम से कम तनख्वाह का सिर्फ नारा है, और अगर किसी को 40-45 मिल भी रही है ना तो आज के दौर में गुजारा नहीं मिल रही। अब ये देखिए, अगर चले प्राइवेट छोड़ दे, सरकारी मुलाजिम का क्या हाल है। उसकी अगर 10,000 तनख्वाह बढ़ा दी है ना, तो उसकी सैलरी से 20 से 15,000 तकरीबन वो टैक्सीज में चला जाता है। तो उसकी सैलरी बढ़ाने का क्या फायदा है, जब आपने अपने वापस ही मांग लेना। अपने ही वापस मांग लेने, ऐसा थोड़ी होता है। अब हर चीज पे ही, अब ये देखें, ये ATM है या पैसे हम लोग जमा कराते हैं, उस पे टैक्स निकलवाएं, फिर टैक्स, फिर कोई चीज में एक और नया टैक्स लगा दिया, 10 रुपए हर ट्रांजैक्शन के ऊपर आपके कटेंगे। किस खाते कटेंगे? मतलब हमारी कमाई से आप किस तरह से ये अमीर कैसे पलेंगे? टैक्स पे टैक्स लगाई जा रहे हैं, क्यों? ये पलना है ना, इन्होंने अपने बच्चों को पालना है, अपना देखना है। हम सियासतदान पाल रहे हैं। ये सियासतदान हमें नहीं पाल रहे, हम पाल रहे हैं। हम सियासतदानों को पाल रहे हैं, सीधी सी बात है। सही बात है। बस वज़रा की तनख्वाह बढ़ानी हो, मेंबर असेंबली की तनख्वाह बढ़ानी हो, वज़ीर आज़म हाउस का घर का खर्चा बढ़ाना, उसके बाग तक को आपने करोड़ों रुपए रख दिए। मैंने देना, ये गरीब आदमी ने देना। और मजे की बात पता है क्या है? उस जगह पर जाने की आपको और मुझे इजाजत परमिशन नहीं है, हमें मिलेंगे भी जाना हो तो इजाजत नामे लेने पड़ते हैं, कार्ड बनाने पड़ते हैं। बिल्कुल, आप लोग तो पास जा भी नहीं सकते। नहीं जा सकते। अब ये मेरे सुनने में है, जितने भी ये तरक्याती काम हो रहे हैं ना, उन गलियों के हो रहे हैं जिन पे जो साबका काउंसलर को कुछ ना कुछ दे रहा है, गली के 1000 रुपया दे रहे हैं, उन लोगों के काम हो रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी? मेरा ताल्लुक UC 240 से, वहाँ UC की हालत देखें, मैं टैक्स पेयर हूँ जी, और मुझ पे एहसान जताया जा रहा है कि आप लोगों की ये बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, और खबरदार किसी ने यहाँ पे पीपल्स पार्टी का दफ्तर बनाया, PTI का दफ्तर बनाया, ऐसा धमकियाँ दे के लोगों को उनके रोड बना रहे हैं। और ये भी एक पैसे भी मांग रहे हैं, 1-1 हज़ार रुपया तकरीबन। अगर एक गली से 40-50 घर है, सबसे ले भत्ता टैक्स ले। हाँ जी, हमारी टैक्स से बना रहे हैं, हमसे ही रिश्वत ले रहे हैं, और सब कुछ हमारे ऊपर ही डाला जाए। भी आवामी पिस रही है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका। चाचू इधर आए जरा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या हाल है ਤੁਹਾਡਾ? बच्चों साइड पे हो जाओ। हालात आजकल सही नहीं है। मजदूरी कर दे हो? हाँ जी, मजदूरी कर रहे हैं। मेरी कोई 65 तो उत्ते ही है। 65 तो उत्ते ही है। हाँ जी। इस दौर च भी तुसी मजदूरी कर रहे हो? मजदूरी ना करिए तो भुखे मर जाते हैं। दवाई नहीं, चूल्हा नहीं बलदा। कितनी दिहाड़ी लेंदे हो? दिहाड़ी है बस कभी 800, कभी 900, 600, 700, 100। आखिरी दिहाड़ी कदों लगी? हाँ जी, आखिरी आज 15-16 दिन हो गए हैं। दिहाड़ी नहीं लगी? नहीं लगी। वेले घर बार किराया का घर है, और महीने बाद लड़ाई झगड़ा, माला कहते खाली करो, अभी कहते जाइए किसे। हुकूमत आने पर सोच रही नहीं कोई हुकूमत सोच रही है चाचू, पेट्रोल महंगा कर रही है, हुकूमत सोच रही है। ये मेरे पीछे आप देखिए सारी लेबर क्लास खड़ी हो गई है, जो कि पेट्रोल को रो रही है, बिजली के बिलों को रो रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर आपके? मजदूरी करते हैं आप भी? जी बिल्कुल। कितना कमा लेते हैं? 40,000 कमा लेते हैं? नहीं, 30 तक हो जाता है। 30,000 तक? हाँ। गुजारा ठीक हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह सही हो रहा है। सही है। बिजली के बिल, किराया, ग्रोसरी मैनेज हो जाता है? नो डाउट, महंगाई तो काफ़ी हो चुकी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। महंगाई तो कमर तोड़ है, लेकिन ये है कि एक अजीब सी अफरा तफरी है मुल्क के अंदर, यानी कि हर बंदा परेशान है, इंक्लूडिंग मी। यानी कि कारोबार का मज़ा नहीं है, और इससे रोजगार का मजा नहीं है। ऐसा लगता है, अल्लाह माफ करे, लेकिन ऐसा लगता है कि जितना आप कमा रहे हैं, जी बिल्कुल ऐसा, उस तरह से नहीं आ रही, उस तरह से बरकत किसी जमाने में आया करती। जी बिल्कुल ऐसा ही है, या तो बरकत का फुकदान है, या बोलने के एक अफरा तफरी सी मची हुई मुल्क। अब जो इन्होंने पेट्रोल एक दफा फिर महंगा कर दिया, पेट्रोल महंगा होने से जिनके पास मोटरसाइकिलें नहीं है, रिक्शे नहीं है, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। उनको फर्क पड़ेगा, जिनके पास कुछ नहीं है उनको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा। ये बातें हम बचपन में पढ़ा करते थे। नहीं, ये बातें, चावल सब महंगा हो जाएगा। ये बातें हम बचपन में पढ़ा करते थे, जब हमें पता चला जनरल ज़िया के दौर में, हम स्कूल पढ़ते थे, पेट्रोल महंगा हो गया, तो उन दिनों बात ज़हन में आती थी कि हमारे पास कौन सी मोटरसाइकिल है, कार है। लेकिन बाद में पता चला कि ये सारी चीज़ें, जितना भी हमारा मुल्क का निज़ाम है, ये पेट्रोल पे ही चलता है। तो जब पेट्रोल महंगा होगा तो अंडरस्टूड बात है, हर चीज़ महंगी होगी, फ़र्क पड़ता है, हर बंदे को फ़र्क पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। और गरीब आदमी, नारे बुलंद हो रहे हैं जी, महंगाई कम हो गई है, हमने हालात बड़े बेहतर कर दिए हैं, वो अपने लिए किए हैं शायद। ये दावे ही हैं और तो कुछ नहीं है। अपने हालात बहुत बेहतर है। मैं वही कह रहा हूँ, ये तो दावे ही है ना इनके। एक एक गाड़ी के पीछे 10-10 गाड़ियां लैंड क्रूजरें फिर रही होती है प्रोटोकॉल के लिए। बिल्कुल ऐसा ही, प्रोटोकॉल में वो जो 50 लीटर कह लें आप, बल्कि आप इनको बैरल में गिन लें,
वो जो बैरल आते हैं, जिनको ये बैरल और बोलते आप हैं। जिसमें मर्जी गिन लें, उन्होंने कौन सा पैसे देने? नहीं, मैं जो कह रहा ऐसे हूँ आपकी जेब से जाने ऐसा ही है, ऐसा ही है। ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ साड़ियाँ खलोतियाँ ने। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप टैक्स देते हैं? जी मैडम, बड़े टैक्स बड़े वगैरह बड़े अमीर हैं आप सर? नहीं, टैक्स तो हमने वज़ीर आज़म हाउस का खर्चा आपके पैसों से चलता है। बिल्कुल CM चलता है। हाउस का खर्चा आपके पैसों से चलता है। खाने भी सारे चलते हैं जी। उन्होंने एक पेन किलर दवाई भी लेनी हो ना, उस डिस्पेंसरी का करोड़ों का खर्चा भी मैं और आप देते हैं जी बिल्कुल उनके ऐसे ही है। बावर्ची खाने के जो करोड़ों रुपए का वो बजट भी हम ही होता है, देते हैं जी, हम ही तो देते हम हैं। बड़े अमीर हैं सर। वो अमीर देखे जी, ये सड़क उन्होंने तोड़ दी एक दफ़ा बनाने के लिए। ये सारे दुकानदार में किसी दुकान पे एक कस्टमर खड़ा है ना, तो मैं जैसे सजा देंगे मैं मरने को तैयार हूँ। सब दुकानदार देखे बाहर खड़े हैं कि दुकान के अंदर कस्टमर है ही कोई नहीं। भाई क्या बात कर रहे हैं, लाहौर डेवलपमेंट प्लान चल रहा है, नारे लगाए इस पे उन्होंने। लाहौर को हमने पेरिस बना दिया है। ये कैमरा है, हम आप काम अभी कर मेरी रहे बात सुने मैडम, ये कैमरा है, अभी आप यहाँ से चल पड़े, किसी दुकान पे कस्टमर खड़ा हुआ, जैसे कहेंगे वैसे भरने को तैयार हम। उन्होंने सड़कें तोड़ दी हैं लेकिन बनाई नहीं दोबारा। ग्रीन टोन अजमत चौकी यहाँ पे उन्होंने पैप डाले हैं लेकिन दोबारा इन्होंने बनाए नहीं है। सर ये मसला ग्रीन टाउन का नहीं है। आप शुमाली लाहौर चले जाएं, आप अंदरून लाहौर मैडम चले जाएं, बिल्कुल सही कह रही पाइप हैं। डालने के नाम पर देखिए ना, गलियां मैं खुली हैं, बिल्कुल कह दोबारा रहा हूं। बनी नहीं है और बारिश में खड्डे मजीद गहरे होते जा रहे हैं। मैं कहता हूँ मैडम, मैं इसलिए अपना कहा है कि हम ग्रीन टोन में रहते हैं। सही कह रहे हैं आप। ये जो आपने बात की है ये भी जेन्युइन है कि जहाँ पे मर्जी चले जाएं, इन्होंने सड़कें बनाने के पैप डाले हर चीज़ के, लेकिन दोबारा वहाँ पे छोड़ दिया काम। इन्होंने दोबारा ये नहीं देखा कि यार जो गरीब बंदा 40-50 रुपया किराया दे रहा है उसके लिए क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। बाजार और मार्केटें खास तौर पे। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने तो वैसे ही इंक्रोचमेंट के नाम पे बाजारों को वीरान कर दिया ना, हजारों लोगों को बेरोजगार कर दिया है। आपने उनके लिए मुतबादल दिया ही नहीं। मैं कहता हूँ पहले हम आपने अपनी तनख्वाहें लाखों में कर ली। कर दिए, बिल्कुल कर दिए। आपको 250-300 लीटर पेट्रोल का कार्ड मिला हुआ है, आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। आदमी ने 8 रुपए 9 रुपए महंगा पेट्रोल डलवाना है, अब जी समझ आ गई, वो उसको समझ लग गई है। लेकिन हमें इतना पता चल गया है कि जो भी जा रहा है ये अवाम को निचोड़ रही है अच्छी तरह, कि इनमें देख रहे हैं कि इनमें से कितना का खून और निकल सकता है। ये ज्यादती करें और बहुत ज्यादा ज्यादती करें, ये तो खाना खराब कर दिया मार्केट का। अब एक दो कैमरा जरूर दिखाइएगा मैडम। मैं जरूर आपके कहने पर जाते हैं और हम आपको दिखाते हैं। और ये कंप्लेंट्स हमें बहुत सी मार्केट से आई है कि मार्केट को उधेड़ के रख दिया, बिल्कुल। फिर आपने उसको ठीक नहीं किया, तो ये एक बड़ी ज्यादती वाली छोटी से पहले का इन्होंने किया हुआ है। इन्होंने कहा भाई 1 माह के अंदर हमने यहाँ से आगे निकलना, साल पीछे बनना शुरू हो जाएगी। ये आप देख ले कि बड़ी ईद भी गई, छोटी ईद भी गई, खाना खराब कर दिया। अच्छी खासी रोड को तोड़ दिया। मैं कहता हूँ अच्छी रोड, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल नहीं है, सिंगल ही थी, लेकिन अच्छी खासी चौड़ी सिंगल रोड है, सिंगल है लेकिन डबल के बराबर है, बिल्कुल। लेकिन इन्होंने खराब कर दिया सड़क और कारोबार तो बिल्कुल तबाह कर दिया। दुकानदार को, आप किसी दुकानदार के क्या, अगर वो खुश हो गया ना यार बड़ा अच्छा किया है, तो फिर मुझे कहिएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी दिखाते हैं आपको जिस बाजार की ये बात कर रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा आ जाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक आम आदमी से लेकर कारोबारी हजरात तक, दुकानदारों तक, सबसे हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो पेट्रोल महंगा कर दिया, तो महंगाई कम करने के नारे किधर गए, वो दावे किधर गए जो असम्बलियों में बैठकर आपने अपनी आवाज़ फाड़ कर ऑपोजिशन को चुप कराने के लिए आवाम को बताया था कि जी हमने पता नहीं कितने मंसूबे जो हैं वो हज़ारों मंसूबे शुरू किए हुए हैं, हमने कितने इंसेंटिव्स लाहौरियों को, पंजाब को, पाकिस्तान को दे दिए। और वज़ीर आज़म साहब कफ़ायत शारी का नारा लगाते लगाते अपने ही वज़ीर आज़म हाउस का बजट बढ़ा बैठते हैं। डिस्पेंसरी का बजट बढ़ जाता है, उनके बागीचे तक का बजट बढ़ जाता है, ट्रैवल अलाउंसेस बढ़ जाते हैं, पेट्रोल जितना लिमिट अलाउड होता है उसमें भी इजाफा, लाख रुपए वाली सैलरी आराम से 4 लाख रुपए तक पहुँच जाती है, वो वज़रा की हो या असम्बली मेंबर्स की हो। एक गरीब आदमी तो सुबह से शाम तक ग्राहक का इंतज़ार कर रहा होता है कि एक चीज़ कोई बिक जाए, बोनी हो जाए हमारी, तो घर का खर्चा जो है वो सुकून से चल जाएगा। आवाम से जानते हैं वो इस पर क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्ग। वालेकुम क्या हाल है सर आपके? लाइट गई हुई है? बिजली गई है, बिजली गई हुई है। बिजली जाना बंद नहीं है, लेकिन बिजली के बिल आना भी बंद नहीं है। लेकिन ये है कि कुछ पहले की निस्बत पहले बहुत ज़्यादा था, यानी हर महीने, हर मतलब घंटे का बाद। अब ये कुछ दिनों से कुछ कमी बेशी हुई है मौसम के लिहाज से। अच्छा, फिलहाल तो गर्मी महंगाई में कमी बेशी हुई है। महंगाई में ये कि पिछले महीने तो यानी सब्जियों का रेट बहुत ही कम था, अब थोड़ा सा फिर नजर आ रहा है कि ऊपर जा रहा है। और चीनी, पेट्रोल भी महंगा, लेकिन चीनी जनाब लेना, इस पर गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए। चीनी ज़्यादा महंगा है, 185 पता नहीं कितना है, लिहाजा
इन पे कंट्रोल है, क्योंकि चीनी एक ऐसा चीज़ है हर गरीब आदमी इस्तेमाल करता है। चीनी सर बाहर तो बेच लें, हमसे सब्सिडियाँ लेके चीनी इंपोर्ट कर दें, फिर गरीब आदमी को जो है ना वो महंगी चीनी दे, अपनी कमाइयाँ लगी हुई है सबकी। नहीं, ये तो उनका मसला है। हमारे लिए तो है कि हम जो इस्तेमाल करते हैं कम से कम घर में 4 किलो 5 किलो चीनी इस्तेमाल हो जाता है। अब आपको पता है कि आजकल क्या रोजगार यहाँ पर 600 800 900 रुपये दिहाड़ी है, तो उस लिहाज से गुजारा मुश्किल हुआ, बहुत मुश्किल हुआ। बस बिल्कुल सही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर 10 रुपये 9 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया, 8 रुपये कुछ पैसे है, लेकिन जब पेट्रोल पंप तक से मिलेगा आपको तो 10 रुपये 9 रुपये तक का बिल्कुल इजाफा। ऐसा ही है। अगर क्या मजाक है? पेट्रोल अगर बढ़ जाता है तो फिर लाजमी बात है कि तमाम चीज़ों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। खाने पीने की चीज़ों से लेकर ज़रूरत की हर चीज़ें हैं उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये है कि अभी अगर आज की निस्बत पिछले दिनों से अगर देखा जाए, पिछले गुज़िश्ता साल 1.5 साल से तो काफ़ी चीज़ों में रेट में कमी हुई है। लेकिन अब क्या फ़ायदा जब दोबारा से गेयर लग गया आगे जाने का? अब बजट देखें, दुनिया में पेट्रोल कम हो रहा है या बढ़ नहीं रहा उस रेशो से, जिस रेशो से आपने यहाँ पर सिर्फ लेवी के नाम पर, टैक्सेस के नाम पर बढ़ा दिया, तो ये तो वापस पेट्रोलियम डिपार्टमेंट के खाते में जा रहा है पैसा। तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के जितने भी पाकिस्तानी हैं सबकी ख्वाहिश है कि ये एक टैक्सेस के ऊपर जो है ना इनके ऊपर एक लाएअमल तैयार करना चाहिए ताकि आम बंदे के लिए आसानी हो जाए, क्योंकि मज़दूर की तनख्वाह उस लेवल के ऊपर नहीं है अभी भी। अगर आम रूटीन में देखा जाए हमारे यहाँ पे तकरीबन 70 to 80% ऐसा तबका है जो सिर्फ मज़दूर। तो और सर 40,000 जो आप तनख्वाह कह रहे हैं वो नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रही, बिल्कुल नहीं मिलती। गुजारा उसमें भी नहीं है, लेकिन वो भी नहीं मिल रही, वो भी नहीं मिलती। अभी आम बंदा जो है ना तकरीबन 50-60 हज़ार रुपये से नीचे तो घर का बजट है ही नहीं किसी का भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर 40,000 रुपये भी लगा लें या 30,000 रुपये भी, बेचारा 30,000 रुपये तो कहीं आगे पीछे से उधार लेके गुजारा करता है। लेकिन ये है कि अभी ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में, लेकिन 2-4 चीज़ें कुछ हैं जिसके ऊपर इनको कंट्रोल करने की मज़ीद ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक से उम्मीद है, गवर्नमेंट से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें ताकि आम बंदा जो है ना इस महंगाई से जो है ना मज़ीद जो है ख़राब ना हो सके। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक। रोज़ का कितना पेट्रोल डलवाते हैं भाई? इसमें जी मैंने तो अभी डलवाया 300 का। 300 का, अब 10 रुपये इजाफा हो गया, ऑलमोस्ट 9 रुपये इजाफा हो गया पेट्रोल में। तो ये आवाम से ज्यादा है ना, 10 रुपये यकदम उन्होंने बढ़ा दिया। पहले इतनी महंगाई हुई है और वो 10 रुपये भी लेवी के नाम पे, टैक्सों के नाम पे है। इंटरनेशनल मार्केट में इतनी कीमत नहीं बढ़ी। अभी तो वो कह रहे हैं ना अभी और बढ़ाना है, तो गरीब क्या करेंगे? गरीब तो पहले ही मरे हुए हैं, कारोबार है कोई नहीं, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। अमीर हुक्मरानों की गरीब आवाम ही रह गई है। हाँ जी बिल्कुल, गरीब आम उनकी किधर जाएगी? दुकानों वाले तो वो भी आके दुकानें सील कर रहे हैं, कारोबार दुकानों के भी कोई नहीं है। वो आते हैं, वो अपना काम कर जाते हैं, ताले लगा जाते हैं, सील कर जाते हैं। तो गरीब क्या बेचारे स्टॉल लगा लेते थे, महीने का 20-25 हज़ार कमा लेते थे, उनके स्टॉल खत्म। हाँ तो वो भी खत्म हो गया। नहीं दिया आपने। क्या कर रही है हुकूमत? ये हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही, एक हुकूमत नाकाम हो चुकी है। नहीं सर कर रही है, मुझसे पूछे क्या कर रही है? नहीं कुछ नहीं कर रही। मुझसे पूछे मैं बताती हूँ, आप अग्री करेंगे? याशी कर रही है। हाँ जी याशी कर, करोड़ों रुपए का बजट रख रही है, वो चाहे वजीर आला हाउस का हो, वो चाहे वजीर आजम हाउस का हो, बागीचे सजा रही है, डिस्पेंसरी में इम्पोर्टेड दवाइयाँ रख रही है करोड़ों रुपए का बजट रख के। हाँ जी, एक आम आदमी के लिए यहाँ से शुगर का पेशेंट अगर हो, डायबिटीज एक बड़ी कॉमन सी दवाई है, उसमें इंसुलिन लगानी हो ना, वो इंसुलिन में नागे करना शुरू हो गया कि इतनी महंगी हो गई है। हाँ जी ठीक है, और आपको हर चीज मुफ्त में मिली हुई है, तो फिर याशी तो कर रही है ना। याशी को मत याशी कर रही, कुछ नहीं कर रही, गरीब आम के लिए कुछ नहीं कर रही। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम बेटा सलाम। सर क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। सर जी कभी आपने वो नारा सुना है पेट्रोल महंगा हो तो वजीर आजम चोर है? वो तो ਅੱਜ ਦਾ नहीं निके निके होंगे उदों ਦਾ सुन रहे हैं। तो निके तो फिर की करिए, पेट्रोल ते वधी जा रहा है, किसी दी कीमत नहीं है। ਕਿਹੜਾ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਦੱਸੋ? हुक्मरान चोर नहीं, मां मस्जिद चोर नहीं, अपना कोई चौधरी वो चोर नहीं, कोई दुकानदार वो नहीं चोर, हर बच्चा 2 नंबरी हर पासे लगी हुई हर दाज 2 सर। ਇਹ 2 ਨੰਬਰੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 15 दिन ਤੋਂ ਬਾਅਦ एक बारी फिर पेट्रोल बढ़ा देते हो। 9 रुपए पेट्रोल का इजाफा, ये सिर्फ मोटरसाइकिल वालों के लिए, रिक्शे वालों के लिए, गाड़ी वालों के लिए नहीं है। इससे सब्जियां, फल, हर चीज महंगी होगी। बिल्कुल पेट्रोल ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਸਭ ਸ਼ੈ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਠਾ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਕੂਮਤ? हुकूमत की करना उन्हें खा रही सब ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਦੋ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੱਥੀ ਫੜਾ ਰਹੇ ਫੜ ਖਾਓ, ਕੀ ਕਰੀਏ?
आवाम खिलाने के लिए रह गई है सिर्फ, ਹੁਣ ਉਹ ਗਰੀਬ निवाले बनाकर मुंह में डालने वाली कसर रह गरीब गई आदमी, है, वरना तो सारा कुछ चल रहा है। ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜੀ- ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ? ਆਹੋ यह दुकान सील कर रहे हैं, क्यों? ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਕਿ ਪਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ सर ਦੇ ए हिम्मत मैनू जाके मॉडल टाउन कचहरी विखान ना, ए मैनू माल रोड ते दिखान जेडे वकीलां ने अपनी गड्डियां अपने बेंच पूरे सड़क दे उत्ते रखे हुए लाए ने, उत्थे इन्हां दी नहीं चलदी, ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। डंडा इत्थे चलदा है ਇੱਥੇ- गरीब मासूम शरीफ इंसान दे उत्ते। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟੀਆਂ ਫਲ ਦੀਆਂ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਆ ਟਰੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੱਦ ਕੇ ਐਲਡੀ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ ਇਹ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਡਰਨ ਰੇੜੀਆਂ 1.5 ਲੱਖ ਵਾਲੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। 10 ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨਾਮਾ। ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੇੜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰ ਦੇ 10 ਰੇੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 200 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਬਿਲ ਬੜਾ ਔਖਾ ज्यादती वाला अल्फाज आपने सही इस्तेमाल किया कि हुकूमत बड़ी ज्यादती कर रही है, कर रहे और हैं। ये अफसोस का मकाम होता है जब गरीब आदमी बेचारा इतना पिस जाए कि उसका चलता चलाया कारोबार आप सील करके चले जाएं, और वहीं पर शहर के इतने ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर पावरफुल लोग जो हैं वो आपकी इस तमाम चीज़ का ना मुंह चढ़ा रहे हैं बिल्कुल। और अकड़ के बैठे हुए वहाँ पे ढीठ बन के बैठे हुए, और आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि साथ आपका एसी का दफ्तर है कि एसी साहब बाहर निकल के वो इंक्रोचमेंट खत्म करा दे। नहीं जी, फिर नहीं। गरीब पे चलती है, डंडा वहीं चला रहे हैं। सही कह रही हूँ सर? गरीब नहीं पिसे हुए थे, गरीब पिस रहा, गरीब पिस रहा। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो, क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक हो जी, ठीक ठाक हो तुसी? अल्लाह का शुक्र फिर कैसे हालात जा रहे हैं? सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सब फिर खैरियत। अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है। इंशाल्लाह अल्लाह ने हुकूमत क्या कर रही है सर? जी, हुकूमत क्या कर रही है? 9 रुपए पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी कर रही, क्या कर सकते हैं? कुछ कह नहीं सकते, उसकी मर्जी को बोल के हम क्या कर सकते हैं? कुछ हुकूमत की मर्जी कैसे सर? हमारे पैसों पे चलते हैं, हमारे वोटों पे आते सारा हैं। हमारा ही है, हम उसको क्या कह सकते हैं? एक घर का मालिक वो अपनी मर्जी से करता, हम उसको क्या बोल सकते हैं? कुछ मालिक वो नहीं सर, मालिक मैं और आप हैं। मालिक अल्लाह है, हम इस भी नहीं। मुल्क की बात अगर हम करें तो उनसे ज्यादा हक हमारा है इस मुल्क हक का है, को मानता ही नहीं। वो देते नहीं हमको, हम क्या उसके करें? हक देते फिर बात है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्ग, क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का करम, अल्लाह का ठीक-ठाक है एहसान। सर? हाँ जी बिल्कुल सर ठीक ठाक। आपने तारीफों वाली तो बड़ी चीज़ें देखी होंगी कि टीवी पे भी, अखबारों में भी हुकूमत ने ये कर दिया, ये कर दिया, गरीब के लिए ये कर दिया। हुकूमत ने 9 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया, हाँ जी हाँ जी। हुकूमत ने अपने करोड़ों के खर्चों के पैसे अलग कर लिए, लेकिन गरीब आदमी को रिलीफ नहीं मिला। गरीब तो पहले ही मरा हुआ है, यूटिलिटी बिल से, महंगाई से। आज सब्जी डबल महंगी हो गई है आज टुडे। हाँ जी, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया ना, डीजल पेट्रोल महंगा हो महंगा, गया। डीजल महंगा, गैस डबल हो गई है। गरीब तो पहले मरा पड़ा है। हाँ जी, आप यहाँ से को हमारी आवाज़ आगे भी पहुँचाए ना। सर ये आपका कहना है, किसी अथॉरिटी किसी को तरस आ जाए तो आ हाँ जाए, जी। वरना रियलाइज करने के लिए यही बात बहुत है कि ये हुकूमत आवाम चला रही है अपने टैक्स के पैसों से। हाँ जी, हाँ और जी। उन्हीं को इज्जत नहीं मिल रही। ऐसे इज्जत क्या मिलनी है? इंसाफ नहीं मिल रहा। हाँ जी, आप कहीं भी किसी फोरम में चले जाएं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई ऐसी बात ही नहीं। मायूसी है, फैल रही है। अल्लाह की बहुत बड़ी ताकत है, तो फिर ये आखिर यही होता है कि फिर अल्लाह का अजाब आता है। अल्लाह की लाठी बेआवाज आवाज़ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई आपके? कितने का पेट्रोल डलवाते थे रोज का? रोज का 2000 लग जाते हैं। 2000 का? क्या करते हैं? मेरा काम इतना है, मोटरसाइकिल का काम है। मोटरसाइकिल तो आपका तो काम जो है ना वो ख़राब होने वाला है अब, क्योंकि 10 रुपये 9 रुपये पेट्रोल में इजाफा हो गया, 8 रुपये कुछ पैसे, लेकिन वो 9-10 रुपये तक आपको पड़ेगा। जो हुकूमत पहले आती है ना, वो पहले नंबर देना क्या ना, थोड़ी सी सस्ती करेगी, फिर 2 महीने बाद ना बस आस्ता आस्ता ऊपर ले जाएंगे। पहले आवाम ने धोखा दिन दिए कैसी चीज़ें सस्तियाँ करती। हाँ जी, फिर आहिस्ता पर्चियाँ लेने हाथ ना उन्होंने इंज करना होंगे जी। शायद सस्ती होगी, खान शायद सब्जियाँ दालां शायद सस्तियाँ, कुछ नहीं जी, सारा फराड है जना को। कम खराब होया है। कुछ कहना चाहोगे हुकूमत में? की कहना, हुकूमत सोने छाड़ी ना। ये उम्मीद भी ख़त्म हो गई है कि हुकूमत हमारी सुन रही है। बहुत शुक्रिया जी आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। जिनका कारोबारी मोटरसाइकिल गाड़ियों पर चलता है, इन ड्राइव वाले, बीएंगो वाले, इस तरह की जितनी कंपनीज़ हैं जो प्राइवेट टैक्सीज़ हैं जिस तरह से काम कर रही हैं, किरायों में इजाफा हो जाएगा, एक आम आदमी पर फ़र्क पड़ेगा। रिक्शाज़ वाले, चिंची रिक्शाज़ वाले किराया बढ़ा देंगे, आम आदमी पे फ़र्क पड़ेगा। सब्जियां, फल,
ये तमाम चीज़ें महंगी हो जाएंगी, आम आदमी पर फ़र्क पड़ेगा। तो पेट्रोल महंगा होने से फ़र्क आम आदमी को पड़ता है, और जिसकी जेब में पैसा है या जिसके पास पावर है उसको कोई फ़र्क नहीं। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक है सर। पेट्रोल महंगा हो गया, वो तो नहीं था, मुबारक हो आपको। खैर वो तो नहीं था, तो फ़ायदा कोई नहीं हो रहा। आवाम के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, घर के इतने बिल आ रहे हैं बिजली के। कितना बिल आया? बिजली का बिल हमें आया तकरीबन 3000 से अब ही आया है, और कुछ नहीं चलता। पंखा 3000 में क्या? एक पंखा और एक बल्ब है और एक कमरा है बस, और किचन है छोटा सा और वाशरूम है, इसके अलावा और कोई एक्सेसरी। मतलब इतनी सादा जिंदगी गुजारना भी मुश्किल है आज। हाँ जी, इतना सा फल लेके जा रही हैं आप? ये मैंने दरख्त से लिया, खुद उतारे हैं दरख्त से? ये परचेज नहीं किया। नहीं किए? क्यों? पैसे ही नहीं है हमारे पास, हालात इतने खराब हो गए, इतने टायर्ड के मरने को जगह नहीं मिलती। अल्लाह रहम करे, अल्लाह मियां आपको जिंदगी दे। सर क्या करते हैं आप? मैं अभी फारग ही हूँ, कोई काम नहीं है? क्या करते थे पहले? मैं फैक्ट्री में भी करता रहा, काम नहीं सही हुआ। फिर उसके बाद कितनी मैंने तनख्वाह मिलती थी फैक्ट्री में? वहाँ ठेके पे काम करते थे। अच्छा। कभी हफ्ते का 4000 आया ना, कभी 3000 आया ना, इससे चलता रहा। हफ्ते का? हफ्ते का तो महीने का 12-15 हज़ार बनता है। इससे चलता रहा। तो माशाल्लाह 3 बेटे हैं, अभी फारग हैं, पढ़ा भी नहीं सका, दूसरा सिलसिला चाह रहा है मेरा। कैसे काम, कैसे घर पे पैसे कहाँ से आते हैं? बस मांग के तो फिर खा रहे हैं, वो भी कभी दे देते हैं, कभी कहते नहीं। आपका तो करो जी। ये स्कूल जाते हो बच्चे? सोर्सिंग ही नहीं है, पैसे इनकम ही नहीं है कहीं से। सरकारी स्कूल तो भेज सकते हैं ना? सरकारी में भी पैसे लगते हैं। कितने का? शूज़ के लिए, यूनिफॉर्म के लिए, कॉपियों के लिए, पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर। नहीं अफोर्ड कर, नहीं हो रहा, घर की रोटी पूरी नहीं हो रही। अल्लाह रहम करे जी हमारे हालात पे, कि लोग जब ये कहते हैं कि घर की रोटी पूरी नहीं हो रही और पेट्रोल महंगा। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र सर। सर ऐसी कहानियाँ सुन के ना दिल को कुछ होना शुरू हो जाता है कि घर में खाने को रोटी नहीं है और लोग दरख्तों से फल उतार कर लेकर जा रहे हैं कि खरीद नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। शौहर बेरोजगार है, 3 बच्चे हैं, नहीं समझ आ रहा कहाँ से पूरी। ये हमारी हुकूमत को खुदा का खौफ करना चाहिए। यकीन करें कि सिर्फ और सिर्फ सुबह उठते हैं तो सिर्फ रोटी की फिक्र होती है कि आज दोपहर को रोटी कैसे खानी है, इसके अलावा दिमाग में कोई और चीज़ नहीं होती। तो हमारी हुकूमत है, उनको कम से कम गरीब आदमी का ख्याल करना चाहिए, इतना कम करना चाहिए कि गरीब आदमी 3 टाइम का खाना खा सके। सर ख्याल कर रहे हैं ना, 9 रुपए पेट्रोल, 8 रुपए कुछ पैसे महंगा कर दिया, 1 रुपया आपने सस्ता गैस कर के देते बिल हैं। महंगे कर दिए, बिल्कुल 1 आपने बिजली की टॉफियां दी, 7 रुपए सस्ता होगा, कोई नहीं सस्ता हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वही सिलसिला चल रहा है जो पिछले गरीब साल था। आदमी के लिए तो यकीन करें ये खुदकुशी हराम ना होती, बाखुदाबाद है मैं तो ये गरीब आदमी जो है ना ज़्यादा तरजीह देता है खुदकुशी करने को। सर लोग आजकल इतना डिप्रेस और परेशान है ना कि लोग अब ये सोच भी भूल गए हैं और इसीलिए आए रोज अखबारात भरे हुए होते हैं। बिल्कुल, अभी कुछ लोग दीनदार ऐसे हैं जिनको पता है कि खुदकुशी हराम है। यकीन करें अगर ये हराम ना होती तो बहुत ज़्यादा लोग खुदकुशी करके अपनी जान छुड़वा लेते। कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहा है मुल्क? सर एक तरफ हम देखते नहीं मुल्क किस तरफ जा रहा है। देखें, एक तरफ हम देखते हैं कि हमारे हुक्मरान लशपश गाड़ियों में कारवां की सूरत में जा रहे होते हैं, पूरे बड़े बड़े कारवां जा रहे होते हैं। एक तरफ हम देखते हैं असम्बली के मेंबर्स की तनख्वाहें बढ़ा दी जाती हैं, वज़रा की तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, सरकारी मुलाजमीन तक की 10% सिर्फ आप तनख्वाह बढ़ाते हैं और बाकी सारा कुछ अपने लिए। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा ना? नहीं, ये राइट है, नहीं कह रहे हैं आप। इनके साथ जो बंदा लग जाता है ना, जो इनका तलकदार होता है वो भी अमीर हो जाता है, उसको भी ऐसे ऐसे गुरु सिखा देते हैं वो अमीर होने की। सर इलेक्शन जब होने हो तो हमें कहते हैं हमारा आपसे ताल्लुक है, आपके वोटों से हमने असम्बली पहुंचना है। नजर नहीं आते, उसके बाद नजर नहीं आते। जब इलेक्शन होते हैं तो दरवाजे खड़का खड़का कहते हैं कि हम आपके हैं, बाद में ये इनकी शक्ल नजर नहीं आती। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, हम तो दुआ ही कर सकते हैं। आमीन जी आमीन। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मजदूरी करते हैं? जी रिक्शा चलाते हैं? चावल दुकान पे काम करते हैं, सेल्स में? नौकरी है। 22,000। 40,000 नहीं है? वो देखो काम हिसाब से है, काम उसके बाद कमीशन मिलता है? नहीं, हमारा 10 साल से हमारा मालिक से काम करता रहा हूँ मैं, 10,000 से काम। तो जो हुकूमत कह रही है कि कम से कम तनख्वाह 40,000 होनी चाहिए हर जगह पर, हर मजदूर की, वो तो फिर मजाक हो गया। वो बात ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह जब देगा ना माल को भी चाहिए, हमारा भी मजबूरी समझे, हम भी माल को भी मजबूरी समझे। चले आपका मालिक के साथ ताल्लुक अच्छा है, मुझे ये बताएं 22,000 में गुजारा हो रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखो आप बाहर काम इस तरह नहीं है, काम स्लो है, वैसे भी सही है ही नहीं, मार्केट में काम ही नहीं है, ऊपर से पेट्रोल महंगा। पेट्रोल भी अब कल पता लगेगा सब्जियां महंगी, फल महंगा, आटा महंगा, चीनी महंगी,
जो आपने अपने पैसों से खरीदनी है और इनके घरों में पहुंच जानी है। देखें, सबसे बड़ी बात है जो हुकूमत, जो भी कोई भी हुकूमत है, ये निज़ाम चलाने वाला है और सोना परवरदिगार सबको वही देता रोजी और वही रात को सुला कर। सर ये हमारा ईमान है, लेकिन अल्लाह ने वसीला इनको बनाया कि शायद ये हुकूमत अच्छी कर लें, तो अपनी तो आखिरत खराब कर रहे हैं, अवाम की दुनिया खराब की भी है। बस जो दुनिया में जो काम करोगे वही करोगे, भरोगे, जो गलत जो करोगे वो भरोगे। सुन लें जी। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह। इतनी बड़ी बड़ी बातें इंसान तभी करता है जब दिल दुखा होता है। बिल्कुल बेशक ऐसा ही है, आप सही कह रहे हैं। मेरा अल्लाह की कसम दिल बंद हुआ है। अभी मुझे खातून कह के गई है बाजी रोटी पकाने की, घर में आटा नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, हालात इतने खराब हैं कि हम मांगने निकले हैं कि किसी से कोई उधार मिले। बिल्कुल ऐसे ही है, आप सही कह रही हैं, वो बाजी भी सही कह रही हैं। ठीक है, मैं खुद नून लीग का वर्कर हूँ। ठीक है, मैंने हर मरतबा नून लीग को वोट दिया है, जितनी मरतबा भी इलेक्शन हुआ है मैंने अपना वोट डाला उनको। मुझे आज तक कोई फायदा नहीं है। तो आपने तो वो बात भी सही साबित कर दी कि वो कह रहे थे तल्लुक वास्ता हो तो वो भी अमीर हो जाता है। नहीं जी, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अपना कमाना है, अपना खाना है। अगर हम 100 रुपया कमाते थे ना, अब 50 कमा रहे हैं, 25 कमा रहे हैं। सर 100 रुपया कमा रहे हैं तो उसकी वैल्यू 50 हो गई, उसकी वैल्यू 25 वैल्यू हो गई। कैसे कम हो रही है? महंगाई की वजह से। महंगाई हो रही है तो वैल्यू कम हो रही है। अगर हम 1000 कमाएंगे तो हमें 200 बचेगा, 500 की तो गैस डलवा लेंगे रिक्शे में। कितना कमा लेते हैं सारा दिन रिक्शा चला के? 10-12 घंटे अगर रिक्शा चलाएं, 12 घंटे। तो मैं हार्ट का पेशेंट हूँ। ठीक है, मैं तकरीबन पहले 12 घंटे 14 घंटे भी चलाता था। अब मेरा ये पोजीशन है कि मैं 5-6 घंटे से ज़्यादा रिक्शा नहीं चलाता। ठीक है, उम्र भी हो गई है। हाँ जी, 55 साल मेरी उम्र है। 55 साल मेरी उम्र है। नून लीग का वर्कर हूँ, मगर उनसे मुझे आज तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैं कैमरे के सामने कह रहा हूँ कि उनकी तरफ से मुझे आज तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। नून लीग तो कह रही है हमने बड़े काम कराए हैं जी। पूरा 1.5 साल में हमने नक्शा बदल के रख दिया लाहौर का। कुछ भी नहीं किया। वो देखे ना, नाले भरे हुए हैं सारे हैं, क्या किया? दिखाएं जरा, मरियम बीबी को दिखाएंगे सुथरा पंजाब। लाहौर का मेन इलाका है ये, आपने सही कहा है। ये जरा दिखाएं, सड़क से उठा के ग्रीन बेल्ट का जो एरिया सेंटर में है वहाँ फेंक के चले जाते हैं। ये है आपका साफ सुथरा पंजाब, ये है आपका सुथरा पंजाब की कैंपेन। और जो रिक्शे और डंपर चल रहे हैं वो कूड़ा उठा के यहाँ पे फेंक के चले जाते हैं। हालात तो ये हैं कि गरीब आदमी से रोटी पूरी नहीं हो रही। और आप जब बजट की कहानी सुनाते हैं तो करोड़ों रुपए अपने लिए साइड पे कर लेते हैं, अपने हाउस के लिए, अपने घरों के लिए। और मैं बार बार इसका जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि वो हमें चुभता है जब आप पेट्रोल में लेवी लगाकर 8 रुपये कुछ पैसे इजाफा कर देते हैं, जो कि पेट्रोल पंप तक आते आते 9-9.25 रुपये का इजाफा पर लीटर पेट्रोल के ऊपर आवाम पर किसी बम से कम नहीं है। और आवाम इस वक्त यही कह रही है कि जी 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही और इनके तमाशे ख़त्म नहीं हो रहे। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ये आइसक्रीम वाली साइकिल चलाकर 10-12 घंटे काम करने के बाद भी घर का गुजारा इतना मुश्किल है कि बच्चों को स्कूल भेजना, घर में कोई खुदा न खास्ता बीमार हो जाए तो मुश्किल बढ़ जाए। पेट्रोल तो शायद इनकी साइकिल में नहीं डलता, लेकिन पेट्रोल से जो बाकी असर आता है ना वो इनके घर के बजट पर बड़ी बुरी तरह से आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सर आपके? ਤੁਹਾਨੂੰ फर्क नहीं पिया कि पेट्रोल महंगा होया, तुसी केड़ा पेट्रोल पाना? पेट्रोल महंगे से कोई गर्ज नहीं है। हम भी ये रेडी लगाते हैं फ्रूट की, ठीक है, हमारी रेडी भी गैप है, हर चीज़ गैप है। जब इन चुप के ले गए वो रेडियाँ उठा के ले जाते हैं, कोई चीज़ भी नहीं मिली है वापसी, ठीक है। अब ये रोड जो बने हुए हैं ये किस लिए बने हुए हैं? रेडी चल फिर के तो इस पे चल सकती है ना, साइड पे चल सकती है। एलडी वाले आते हैं, जो पैसे दे उनको छोड़ दिया, वो लगे हुए हैं। जो कुछ नहीं दे सकता उसको उठा के ले गए। ये अलग बदमाशी शुरू की हुई है। एक तरफ आप तजावुजात की बात करते हैं जी, हमने खत्म करनी है। आपने कहा कि आप हर रेडी वाले को रेडी देंगे, आपने नई रेडी क्यों नहीं ली? नई रेडी क्या, पुरानी भी उठा के ले गए? नई के लिए अप्लाई किया था आपने? सब कुछ किया हुआ है, आईडी कार्ड दिया था, उन्होंने नंबर तक दिया हुआ है। अच्छा। ठीक है, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसके बावजूद ये जो है ना एलडी वाले या के कारपोरेशन वाले, जो चीज़ ऊपर से मिलती है ये खुद खा जाते थे। ऊपर से मरियम नवाज साहब का जो है ना नाम बदनाम किया हुआ इन लोगों ने। अच्छा। वो कहती है कि कोई रेडी शहर में नहीं होनी चाहिए। वो कहती, क्या उसने ऑर्डर दिया हुआ है कि मजदूर जो है वो भूखे मर जाए? ये पूछे आप सवाल उनसे। हाँ, वज़ीर आला साहिबा, एक आम आदमी आपसे सवाल पूछ रहा है
कि क्या आपने ये ऑर्डर दिए हैं कि पूरे शहर के मजदूर मर जाएं, जब ये बेरोजगार हो जाएं, भूखे मर जाएं लोग? ये जो अदारे वाले कहते हैं, LDA वाले कहते हैं कि कोई रेहड़ी शहर में नहीं होनी चाहिए, पूरे पंजाब में नहीं होनी चाहिए। जब होनी नहीं चाहिए तो फिर ये क्यों कहते हैं कि हम रेहड़ियाँ नहीं देंगे? ये पुरानी भी उठा उठा के दूसरों को बेचे जा रहे हैं। क्यों करते हैं? बेच नहीं रहे, तोड़ रहे हैं सर। तोड़ नहीं रहे, बेच रहे हैं। अच्छा, बेच रहे हैं। हाँ, तोड़ नहीं रहे हैं, बेच रहे हैं। दूसरे तो इलाके ये तो से बदमाशी चल रही है। इस इलाके से जो उठाई है दूसरे पे जाके लाख 2 लाख लिया और बेच दी। 40-40 हज़ार की रेडी बनती है। आपकी रेडी उठा के ले गए थे? हम रेडी ले गए, हर चीज ले गए, फ्रूट तक ले गए। फ्रूट था ऊपर ले गए। बड़े लोग बेरोजगार हो रहे हैं सर। आप छोटे छोटे स्टॉल लगाने वाले लोग शक्लें देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? हुकूमत को बदनाम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हुकूमत ने ये कहा हुआ है कि वज़ीर आला साहब ने ये तो नहीं कहा है कि इनको भूखे मारो, ये कहा है उसने? ये तो नहीं कहा है ना। उसने तो कहा है कि हम इनको रिलीफ दे रहे हैं, हम इनको रेडियाँ देंगे और देंगे, ये जो नहीं ले सकते उनको भी रेडियाँ देंगे, अपना काम करें। और ये कहते हैं कि पूरे शहर में कोई रेडी न रोड पे नहीं ये हकीकी तबसरा और आप भी थी जो है ये साहब बता रहे थे। अल्लाह करे जी वज़ीर आला साहिबा इनकी ये बात सुने। और बात इनकी ठीक है कि ये डिपार्टमेंट वाले अपनी ही हुकूमत को बदनाम कर रहे हैं। आपको ये लगता नहीं है कि वज़ीर आला ने कहा होगा सब भूखे मर जाए? नहीं कहा होगा। हमें नहीं कहा। लेकिन ये फिरौनियत आप ये कह रहे हैं जी, ये इंक्रोचमेंट वाले दिखा रहे हैं। ये इंक्रोचमेंट वाले करते हैं। वज़ीर आला साहब ये हुक्म दे रही है, जब वोट इकट्ठे किए हैं दोबारा ये हुक्म देगी कि इनको भूखे मार दो। अगर रेडी निकालनी है तो फिर नई क्यों बना के दे रहे हैं? और नई बना के देनी है तो फिर इतनी बनाओ कि सबको मिले। नई बना के जब दे रहे हैं तो फिर वो ये तो नहीं कहेंगे कि इनको निकाल दो। फिर ये जो है नीचे वाले हमले हैं, ये क्यों ऐसा करते हैं? अपनी जेबी भरनी। जेबे ये करप्शन की एक दास्तान है जो इन्होंने बता दिया। मिलता है वहाँ के, ठीक है, वो भले रोड के बीच में खड़ा हो जाए, जो माल नहीं दे रहा वो उसको उठा के ले गए। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर? मैंने देखा आप उधर से रुक के आए, आपने साइकिल रोकी और मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ। हमारी तनख्वाह 40,000 हो गई है। हो गई है? हाँ, हमें 25 ही मिल रही है, हमें 40 पूरी नहीं मिल रही। आपको हुकूमत ने 40,000 कर दी है तो 40,000 होनी चाहिए। हाँ जी, पर तानू पंजी मिल रही है। पंजी मिल रही सानू मंगो ज्यादा ते कहणगे जाओ किते और काम लब लो। हाँ नहीं कहिए तो असं यही काम होंगे कि तुसी लग जाओ वोट। ते गरीब नू रहन नहीं दे रहे। हुकूमत वालों नहीं सख्ती नहीं हैगी जिन्नी LDA वाले सख्ती कर रहे हैं। कल 6 रेड़ियाँ चुकी इन्होंने कब्रिस्तान तो अग, 2 इधरों आए, 2 इधरों आके उन्होंने फ्रूट थले रखे ते रेड़ियाँ ले गए चुके। ते गरीब की कमाएगा ते की खाएगा उन दिनों? जुल्म कर रहे हैं आप, कानून नाफिज करने के नाम पर। बदुआ से मुसलमान को मार रहा है। मुसलमान को कातिल बना हुआ आजकल ये हुकूमत भी। मरियम नवाज ने कुछ नहीं किया जितनी अवाम वो कर रही है। बंदा बंदे को मारने पे तुला हुआ है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। आवाम की हकीकी हालात असरात, 8 रुपये पेट्रोल बढ़ने के बाद आवाम जो है वो परेशान है, कानों से धुएँ निकले हुए हैं कि गुजारा कैसे करना है, बिजली के बिल कैसे पूरे करने हैं, गैस आपने महंगी कर दी उसको कैसे बैलेंस करना है, पानी का बिल बढ़ा दिया गया, टैक्सेस में इजाफा कर दिया गया, किस तरह ये चीज़ें बैलेंस आउट होंगी। और ये सवाल वो डायरेक्टली अपने हुक्मरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा से पूछ रहे हैं। अल्लाह करे जी उनको उनके सवालों के जवाब मिल जाएँ, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।